So let's start with JavaScript data type. JavaScript data type can hold many data type values like number, string, objects, and many more. In past year, when you have read the C language, you came across that you have set data types like int, float, characters, okay, which was defining the thing. Now here we have a data type which is defined in the statement, the JavaScript. Okay, and it is a dynamic data type. Dynamic data type. The best part of JavaScript data type, it is a dynamic data type, and how it works. Let's discuss it. The concept of data type in any programming language is very important. The concept of data type in any programming language is very important. Okay. Now, the thing is, what is the job of data type? Job of data type to represent a real world things in a format of the programming from which the computer can safely understand what type of operation he have to perform. He safely understand what type of operation he have to perform by choosing a variable. Okay, so the variables are known as the operand, and the operations on which we do is known as the operator. Now here we understand that ऑडियो म्यूट कर दो, आवाज आ रही है. Here we understand the one thing. Here we understand one thing, that data type here the data type is little bit different than our past one. Okay, and how it is little bit different? How it is a little bit different? It is little bit different. It is little number bit, ऐड नहीं होता ना. it is little bit different because let's start from basics again. We are understanding the because वो थोड़ा सा भी हल्ला मची आया था तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आया. Let's start from the basics again. See, in the JavaScript data type, we understand that we data types is going to be held in the variables which will defined by the JavaScript manual. In the JavaScript variable manual, we can define different types of data types. In the different types of data types, there are numbers, strings, objects, and more. And the concept of data type is as usual in the programming language. What is we use the data type as a carrier of our objectives to perform in the programming language. So here the thing is the variable can store a different type of data type within a single notation. Like here example is like variable x is equal to 16 plus Volvo. Now Volvo is a string and 16 is a number. So in general, it is not possible in the C++ and C in the past. It is different. But in the web dimension, when we use this thing, we can add this thing in a simple format. And JavaScript treat them both number as a string. And when we add the 16 plus Volvo, JavaScript produce a result 16 Volvo. It's our online editor will solve this problem. Okay. Our online editor will solve this problem. Now here online editor has given this number 16 Volvo. Okay. How it is being done in the data? How it is being done in the JavaScript? It is done in JavaScript by following a set procedure. In the set procedure, we first of all we need to understand we are going for the web browser. We are going for the web browser, so we need a markup language, and all the functionalities perform under the HTML documentations. Now under the HTML we will define a body which
Header is defined as the JavaScript for it is for understanding, and in the paragraph we are writing the concept that when adding a number and a string, JavaScript will treat the number as a string. Now, how it is defined? First of all, we defined a ID named as demo. We defined an ID named as demo, and that ID is passed, will be passed in future. How will it passed? But it is passed in the functionality which is defined within a JavaScript. Now, in the script, in the script, we we have defined, first of all, we have defined a variable x. The script we have defined, first of all, we defined a variable x. Then in that we define a number 16 and one integer value Volvo. How it is going to show on our as a resultant of on our website or on our web page. It is like this. When we write a statement as a JavaScript like document dot get element by ID. Now, element is there, and element is like a markup keywords which is defined in HTML, and by ID you are defining demo. You pass that ID within that JavaScript documentation, and then you connect that with the dot operator, and it is shown that this part will be shown in inner HTML as a x value. Now, what the x value will do? It will do what is defined in the JavaScript manual. And what is defined in the JavaScript manual? The highest the priority of the highest priority data type will be it follows a dynamic version of representing the thing, and where the highest priority thing has been represented. Now, what is the highest priority thing here out here is it is a Volvo because it is a string. Now, where we just add this 16 plus Volvo as a 16 Volvo and take it as a string. Now, understand that in JavaScript we always go for the highest priority. Now, that's what it is written out here. When adding a number and a string, JavaScript will treat the number as a string. Okay. Now, let's move. There is a various example that 16 plus 4 plus Volvo, it is a 20 Volvo. Why it is a 20 Volvo? Because we add this thing, you know. Here it is a very good example, very important thing that JavaScript evaluate expressions from the left to right. Now, left to right is this one is left to right. Evaluate 16 plus 4 is a 20. Now 20 will add in the Volvo. Different sequence can produce different results. Okay. Very important. JavaScript evaluates expressions from left to right. Compilation within the JavaScript, or you can say that interpretation within the JavaScript is done from left to right. Now, in the first example, JavaScript treats 1614 as a number until it reaches Volvo. In the second example, since the first operand is a string, all operands are treated as a string. Though, what is this? Because this is the highest, whatever the highest priority will get in that statement, that will be its notation. That's why it is possible, because it is possible. We know that JavaScript types are dynamic. JavaScript has dynamic type. That means that the same variable can be used to hold different data types. Now, x is we defined a variable x, and it is having a value x is equal to 5 as well as x is equal to John. Now, John will supersede this thing. John will supersede this the number value due to our definition, because JavaScript is a dynamic, and it always produce this result, because in the precedence of the thing, the string has a higher priority than number. So string is shown. That's why in the answer you are getting John. Now, if you add, let's make some changes. First of all, we have changed the notation, and let's see what happens.
It's 5. Why? Why? Let's do one more job. Now see here. The X has a John. Initially, the X has a John, then it is X to 5. Because it is dynamic, now the definition is 5. Now again defining this thing, now the definition is n, it is a string. In the next run, it is showing n. Same variable is holding different data types. Same variable can hold different data type, and what it will show, just show the last one. Here it is an example. End of the day, it is showing John right now because it is superseding X. It is showing 5 because it is a dynamic. First of all, it was John. Then we have defined X is equal to 5. Now we are defining X is equal to John again. Let's see what's happened. It's John again. So here it is dynamic property. First of all, X take assigned because this is a assignment operator here. X assigned a value of John. Here X assigned a value of 5. It is dynamically replaced John. It dynamically replaced John, and the 5 is a new value. Now John is again its value, and it is done without our notification because it hasn't. We have programmed this thing here, and due to the property of the JavaScript, it is happening like this. Okay, are you able to understand what I want to say? समझे आप कुछ? सर जो x की वैल्यू जो एंड में डिफाइन करेंगे वही प्रिंट होकर आएगा. yes, तो जरूरी नहीं है कि उस पर x की कितनी भी जो भी स्ट्रिंग लिखा हो वो नहीं. ये असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, तो जो भी इसमें लास्ट में असाइन किया जाएगा वही आएगा. समझ में आ रहा है? अच्छा. और ये जैसे ये प्रेसिडेंस के हिसाब से होता है कि पहले स्ट्रिंग ही प्रिंट होता है और नंबर बाद. ये जब यहाँ पे हम एक ही वेरिएबल को साफ लिखते हैं तो जिसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू है उसको हम ले लेते हैं. यहाँ पे लिखा है ना, दो चीज इंपॉर्टेंट है. मैंने ऐड का नंबर स्ट्रिंग ये समझने के लिए मैंने आपको समझने के लिए बताया. इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप नंबर स्ट्रिंग को ऐड करते हैं तो जावास्क्रिप्ट इसको स्ट्रिंग की तरह लेता है. दूसरा, जावास्क्रिप्ट इवैल्यूएट्स एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिफरेंट. हाँ, तो हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं इसमें कि जैसे पहले वो स्ट्रिंग प्रिंट हो गया अपने प्रेसिडेंस के हिसाब से, उसके बाद फिर वो नंबर भी प्रिंट कर देनी नीचे उसके. अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं, इसको हटाते हैं. ठीक है, इसको हटाते हैं. अब हम ऐसा करते हैं, x = एक नंबर ही ले लेते हैं. ठीक है, तो फिर देखते हैं क्या प्रिंट होता है. ठीक, क्या प्रिंट हो रहा है? 5. इसको बदल दीजिए, तो जो लास्ट में आएगा ना वही प्रिंट होगा. अगर एक ही वेरिएबल में आप जो भी लास्ट में डेफिनेशन करेंगे वही प्रिंट होगा. अभी देखें क्या समझ में आया? जॉन. हाँ. ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट इवैल्यूएट्स एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ये लेफ्ट टू राइट चल रहा है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट. फिर यहाँ लेफ्ट टू राइट आ रहा है, तो इसके लेफ्ट टू राइट ने पुराना रिकॉर्ड खत्म हो गया ना. देखो लेफ्ट टू राइट चला ऐसे, फिर लेफ्ट टू राइट हुआ, फिर लेफ्ट टू राइट हुआ. तो यहाँ पे आने के बाद लास्ट में जॉन आ रहा है ना, तो ये लास्ट में x की वैल्यू क्या है? जॉन है. तो यहाँ पे वही पास हो रही है और वही यहाँ पे प्रिंट हो गया. यहाँ पे समझ आ गया? समझ आया? यस नहीं है ना? मूव. यस सर.
आगे बढ़े. The second example, the first operand is a string. All the operands are treated as a string. ठीक है. अब देखो JavaScript has a dynamic type. This means that the same variable can be used for different types of data types. ये हम लोग डिस्कस कर लिए. ठीक है. Now, a string or text string is a series of character like John Doe. String can be written with quotes. You can use a single or double quotes. ये important है. If you want to write a string, then it should be in a single quote or double quote. Let's move. Let's move. ये showing के लिए है. इसको अभी देख लेंगे बाद में. JavaScript numbers. JavaScript has only one type of number. Number can be only written with or without decimals. Let's understand these two things. What is going on? Finally, 30 participants are here. Anybody can take the screenshot of the participant. That's why I can mark the attendance. Okay. Now understand this here. We have a string out here. Okay. Now it is in a double inverted comma. We have a string in the single inverted comma. What is going out? What is going out here? We have defined a two string. Now we have defined a two variable, car name 1 and car name 2. And we defined the same name, Volvo XC60, but within a double inverted comma and single inverted comma. Right? This command is same from the previous example, the document.get element by id demo.in. We will discuss this in the function part. Let's understand this now. It is one of the command used to print the thing. You just get an element by id and within inner HTML, you print the thing. That's it. You just understand this. Okay. Now you get the car name. And you have a break rule, car name 1. How you will show? Let's see here. The concept is how you will show. Okay, it's just saying so. If I am not using this break rule, what will happen? तब वो अगर ब्रेक नहीं यूज करेंगे तो वो Volvo XC60 वो मर्ज हो जाएगा दोनों एक साथ. Got it. यही होगा ना? समझ में आया? समझ आया क्या? यहाँ पे मर्ज हो जाएगा. ब्रेक रूल अगर आप रूल नहीं करेंगे तो Volvo X60 मर्ज हो जाएगा. आप इसे एग्जांपल देख लीजिए. मैंने फिर से हम लोग करके देख लेते हैं. मैंने यहाँ पे क्या किया है? कार 1 के पास एक क्या है? गैप है. ठीक है. गैप के बाद फिर उन्होंने कार नेम 2 को करना था. तो कार नेम 1 क्या है? Volvo XC60. अभी कह रहा है NAN. NAN क्या मतलब क्या है? इस NAN को अभी समझेंगे. इसको दिमाग में आप रखे रहिए. इस NAN को हम समझेंगे क्या है. लेकिन अभी आप इसको समझिए. यहाँ पे देख रहे हैं ये ऐड कर रहा है कार नेम 1 और कार नेम 2. Volvo X60 और फिर Volvo XC60. यहाँ पे जब हम इसको हटा रहे हैं तो ये व्हाइट स्पेस आ जा रहा है. क्या आ जा रहा है? व्हाइट स्पेस. जब व्हाइट स्पेस आ जा रहा है तो वहीं पे वो कैलकुलेशन को रोक दे रहा है. NAN हो जा रहा है. समझ में आ रहा है? समझे कि नहीं? हम समझे कि नहीं समझे? व्हाइट स्पेस में क्या हो रहा है? वो NAN शो कर रहा है. अभी इसको देखेंगे कि NAN क्या है. ठीक है. कभी भी ऐसा कंफ्यूजन आए करे, यू जस्ट गो to our Google Baba and understand the thing right now. What is NAN? It is not a number value. Not a number. Got it? A small is small. Yes, sir. What is NAN? NAN is property represents not a number value. Property indicates a value is not a legal number. NAN property is a number. Every time you can get a whatever result is coming and you're not able to understand, go to the Google Baba and cross verify with the wskills.com. You will get that. You will get that thing. That's the
provided by this W3 school platform. We have discussed this. Now let's discuss this again. We have again the same part, how the numbers will be shown from the decimal and without decimal. Here it is x1. X1 is 34.1 34.00. It is x2, it is a 34, and it is a x3, it is a 3.14. We in JavaScript we take absolute value. Now the absolute value of 34.00 is 34. Here it is absolute value, and here it is the point 3.14 is a pi value, and it will show. How it will show? Let's see. Here it says that from x1 break the rule, then we will get a x2, then break the rule, we'll get the x3. Okay, and finally the answer is here 34, 34, 33. Okay, how you understand how it's going on? Again, सर ये एब्सोल्यूट वैल्यू लेता है तो कैसे x3 में डेसिमल वैल्यू कैसे ले रहा है फिर? अभी यहाँ पे देखो थोड़ा सा, यहाँ पे ये 34.00 एब्सोल्यूट वैल्यू का मेरा कॉन्सेप्ट ये है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि जब ये दो तरीके से ही लेता है सर, वेदर हैज ओनली वन टाइप ऑफ वेरिएबल, या तो डेसिमल के साथ या डेसिमल के बिना। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप डेसिमल के बिना काम करते हैं, जब ये डेसिमल के बिना आप काम करते हैं, तो यहाँ पे डेसिमल के साथ 00 है तो इसको रिप्लेस करके एब्सोल्यूट वैल्यू शो कर दे रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डेसिमल के बाद वैल्यूएशन है, समझने के लिए है, वैल्यूएशन है, तो इस वजह से सिर्फ ये वैल्यू को यहाँ पे पुट कर रहा है। ये स्पेस नहीं लेता है। ठीक है, ये स्पेस ये काम किस लिए किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि स्पेस कम से कम लगे। समझे? ये थोड़ा सा स्पेस आपको .00 पे कोई वैल्यू है नहीं तो स्पेस को कम करने का काम करता है। प्रोग्रामिंग के नीचे हैं थोड़े बहुत। और यहाँ पे आप देखिए मैंने अभी एक चेंज किया है, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। यहाँ पे मैंने अभी यहाँ से BR को हटाया है, तो अभी देखिए मैंने यहाँ पे ब्रेक रूल हटाया तो क्या हो रहा है, रन किया तो यहाँ पे 68 आया। कैसे 68 आया? देखो x1 इज 34, यहाँ पे व्हाइट स्पेस है, व्हाइट स्पेस के बाद ये ऑपरेटर काम करेगा, ये उसको ऐड कर देगा तो वो जाएगा 68। फिर यहाँ पे ब्रेक रूल हो रहा है, ये हटा दीजिए, अरे ये भी ब्रेक रूल अभी आप हटा दीजिए, तो क्या रिजल्ट आएगा? ये क्या कर रहा है, लाइन से सबको हेड कर रहा है और व्हाइट स्पेस को हटाते हुए चला जा रहा है। नाउ व्हाइट स्पेस इज वेरी मच वैल्यूएबल इन द स्ट्रिंग्स, बट इन द नंबर्स इट विल सिंपली ऐड द थिंग। समझे? समझे कि नहीं? NaN आ जाएगा व्हाइट स्पेस देंगे तो। हाँ, व्हाइट स्पेस देंगे तो नहीं, जब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा, जब नंबर और स्ट्रिंग दोनों आएगा और आप उसको ऐड करेंगे तब NaN आएगा, नहीं क्योंकि वो वैल्यू को हाईएस्ट को स्ट्रिंग मानेगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है NaN। ये ECM में जो है स्क्रिप्ट के वर्जन्स देता है, ECM में एक ऑर्गेनाइजेशन ये स्क्रिप्ट्स के वर्जन देता है। नाउ extra large and small numbers can be written with the scientific exponential notations. तो extra large number जैसे कैसे? extra large number क्या है? 1 2 के 3 के पावर 5 e to the power 5 e to the power 5 क्या है? 1 2 3 4 5 ये है e को एक्सपोनेंशियल 5 उधर ले रहा है, 1 2 3 4 5 5। तो यहाँ क्या रहा है, एक्स्ट्रा नंबर्स जो हैं, जैसे मान लो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, e क्या कर रहा है यहाँ पे, ये 0 रिप्रेजेंट कर रहा है। e का मतलब ये है कि कितने पावर चाहे 0 है। यहाँ पे क्या रहा है, -5 का मतलब क्या है कि 5 इधर, e to power 5 का मतलब क्या आ रहा है, 5 आगे पॉजिटिव डायरेक्शन, और ये क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, इसके बारे में और पढ़ा जाएगा आगे। अब चलो बूलियन कैसे काम करता है। यहाँ पे बूलियन ऐसे काम करता है कि जब आपके पास दो वैल्यू में ही आंसर देना हो, यस और नो में, तो आपको बूलियन ऑपरेटर का यूज करते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्या है कि x = 5 है, y = 5 है, z = 6, आपने 3 वेरिएबल डिफाइन किया, ये इक्वल टू ऑपरेटर है। तो क्या ये इक्वल टू है? तो यहाँ पे ट्रू होना चाहिए, और ये इक्वल टू है नहीं है, यहाँ पे फॉल्स होना चाहिए। देखिए कैसे होता है।
ये देखिए कैसे होता है। इन्होंने कहा कि क्या इक्वल टू है, तीनों इनके पास बेसिक कैलकुलेशन पहले से मैकेनिज्म डिफाइन की, इन्होंने डिफाइन किया कि ये ट्रू है कि भाई ये x इज इक्वल टू 5 है, ये x इज इक्वल टू 5 है, ठीक है, और इन्होंने उसको कैलकुलेट किया और चीजों को उठा के रख दिया ना। मूव बुलियंस ऑफन यूज इन द कंडीशनल टेस्टिंग, कंडीशन की जब टेस्टिंग करनी होती है तो हम बुलियंस का यूज करते हैं। इसके बारे में और डिटेल में हम आगे पढ़ लेंगे। नाउ अगेन अंडरस्टैंड जावास्क्रिप्ट एरेज आर रिटन विद स्क्वायर ब्रैकेट्स। कैसे लिखते हैं एरे, कैसे लिखा जाता है इसमें, स्क्वायर ब्रैकेट्स में। वैसे भी हम एरे कैसे लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में तो लिखते हैं, ठीक। तो इसमें क्या है कि भैया अगर वेरिएबल अगर स्ट्रिंग है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा रख के उसको कॉमा कॉमा का आगे बढ़ा देंगे, अगर स्ट्रिंग नहीं है तो नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करिए। ऑब्जेक्ट डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट एकदम नया है इसमें। तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, कर्ली ब्रेसेस जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट डेफिनेशन देता है। और ऑब्जेक्ट में क्या है, प्रॉपर वही सेम जो मैंने आपको बताया था, प्रॉपर्टी वैल्यू। यहाँ पे क्या है, नेम वैल्यू है। तो जैसे क्लास की डेफिनेशन में प्रॉपर्टी और वैल्यू होती है, ऐसे यहाँ पे आपके जो चीजें हैं वो नेम इज टू वैल्यू है, नेम इज टू वैल्यू है। फर्स्ट नेम वैल्यू पेयर, नेम वैल्यू पेयर, नेम वैल्यू पेयर, नेम वैल्यू पेयर, ऐसे चल रहा है। तो कैसे चल रहा है, ऑब्जेक्ट पर्सन इन द एग्जांपल लेता है फोर प्रॉपर्टी, फर्स्ट नेम एज आई, ये क्या है प्रॉपर्टी, फर्स्ट लास्ट एज आई, और उसके आगे क्या जो लिखे हुए हैं उसकी वैल्यू। टाइप ऑफ क्या करता है, ये बताता है किस टाइप का वेरिएबल है। टाइप ऑफ डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसका मतलब क्या है, स्ट्रिंग है। टाइप ऑफ डबल इन्वर्टेड, इसका मतलब क्या है, स्ट्रिंग है। टाइप ऑफ डबल इन्वर्टेड, इसका मतलब क्या है, स्ट्रिंग। टाइप ऑफ ये बताता है कि आप किस टाइप के वैल्यू सिस्टम में हैं, किस टाइप के वैल्यू सिस्टम को आप फॉलो करते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ आपको ये बताता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये सीधे सीधे बता दे रहा है कि भैया ये टाइप ऑफ जो है कैसे काम कर रहा है। टाइप ऑफ को, टाइप ऑफ ने अपने डिफाइन किया तो उन्होंने स्ट्रिंग रिटर्न कर दिया। अब टाइप ऑफ में आप थोड़ा सा ये वैल्यू हटाइए, देखिए तब क्या रिटर्न कर रहा है, नंबर और स्ट्रिंग, ठीक है। जब ब्लैंक हो रहा है तो वो नंबर को रिटर्न कर दे रहा है। स्ट्रिंग स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कोई डेफिनेशन उन्होंने डिफाइन ही नहीं की, यहाँ पे स्ट्रिंग और स्ट्रिंग नंबर उसने रिटर्न कर दिया। तो ये सब टाइप ऑफ का काम है कि वो ये बताता है कि कैसे यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, कौन से वेरिएबल टाइप में हम काम कर रहे हैं। डेटा टाइप वेरिएबल में, इस वेरिएबल में कौन सा डेटा टाइप में हम काम कर रहे हैं, ये बताता है कि हम टाइप ऑफ, अगर ये टाइप जैसे 3.14 था, इसका मतलब कंफ्यूजन था ना, ये नंबर है। अब जैसे एक नंबर, अभी एग्जांपल लेते हैं, एक नंबर लिखते हैं 3.1000, इसका कंफ्यूजन था ना, रन करिए, ये भी नंबर है, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, ये अपने आप में एक नंबर है, कोई फर्क नहीं है। अब देखिए अनडिफाइंड, तो नंबर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट डेफिनेशन हो गया, एरे डेफिनेशन हो गया। अब हमने अब उसके बाद टाइप ऑफ डिफाइन कर लिया, अब हम अनडिफाइंड पे आ रहे हैं, ठीक है। इसको आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए अनडिफाइंड में क्या है, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल विदाउट अ वैल्यू हैज द अनडिफाइंड, जो वेरिएबल वैल्यू के साथ नहीं है उसको हम अनडिफाइंड कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। अब एम्प्टी की वैल्यू क्या है, एम्प्टी वैल्यू हैज नथिंग टू डू विद अनडिफाइंड, एम्प्टी स्ट्रिंग हैज बोथ लीगल वैल्यू एंड टाइप। ये क्या है, एम्प्टी वैल्यू है, ये अनडिफाइंड नहीं है। अगर ये डबल इन्वर्टेड कॉमा तो ये स्ट्रिंग है, लेकिन एम्प्टी है। जैसे आपने घर खरीद लिया है लेकिन घर में कोई रह नहीं रहा, लेकिन घर तो आप ही का है ना। तो यही वही एग्जांपल है। यहाँ पे क्या है, एम्प्टी है, एम्प्टी वैल्यू, और अनडिफाइंड और एम्प्टी में अंतर होता है। देखो यहाँ पे कार जो है, कार को डबल इन्वर्टेड कॉमा में अगर हम बंद कर दें तो ये स्ट्रिंग हो जाएगा ना, स्ट्रिंग, इसको रन कर दो तो अनडिफाइंड की वैल्यू खत्म हो जा रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कार डिफाइंड हो गई, स्ट्रिंग हो गया वो।
ठीक है, अभी इसके पहले वो शो कर रहा था, अब नहीं शो कर रहा है क्योंकि वो स्ट्रिंग हो चुका है, वो उसको समझ में आ चुका है को क्या है। ठीक है, जय माता दी होगा, जय मामा दी होगा। क्या लिखा लल्ले? जय मामा दी लिखने वाले थे। क्या तो मेरा मामा कौन ठीक है, कौन बजे मौर्य रोहित। Control your emotion. now understand this. Now understand this. You understand now what is going on out here? The undefined things is when we taken care. Okay. ठीक, आपको अनडिफाइंड समझ में आया ना? हेलो, आगे बढ़ते हैं। अब ये नल देखिए, एक है अनडिफाइंड, एक है एम्प्टी और एक है नल। नल का मतलब ये होता है कि in JavaScript null is nothing. It's supposed to be something that doesn't exist. Unfortunately, in JavaScript the data type of null is an object. यहाँ पे जो null है वो क्या है? एक object. You can't consider bug in JavaScript that the type of null is an object. It should be null. ठीक है? You can empty object by setting it to the null. कोई भी अगर ऑब्जेक्ट आप जनरेट कर ले रहे हैं और उसको एम्प्टी करना चाहते हैं, आप सिंपल उसको नल लिख दीजिए। जैसे आपने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिफाइन किया वेरिएबल पर्सन, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है ना, इन्वर्टेड कॉमा में सेमी कॉलन में है, ऑब्जेक्ट इज टू वैल्यू पर सेमी कॉलन में आपने इसको कर लिया। अब ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे आपने डिफाइन कर दिया नल, तो सीधे क्या हो जाएगा, ये क्या बात कर दे रहा है, सीधे ये क्या रिप्रेजेंट कर दे रहा है, ऑब्जेक्ट, उसकी वैल्यू क्या कर दे रहा है, नल। तो नल जब होगा तो जावास्क्रिप्ट में उसको एज ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ पे बता रहा है कि अनडिफाइंड और नल में क्या होता है। ये अनडिफाइंड कहता है कि अनडिफाइंड और नल एक ही चीज है लेकिन इसके प्रकार अलग अलग है। Undefined and null are equal in value but different in type. Type different है। Undefined जो है और undefined अपने आप में एक definition है जो define किया गया है जावास्क्रिप्ट में, और जो null है वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे ये बात बताई गई है कि undefined अपने आप में ठीक है। क्या null बराबर है undefined के? हाँ सही है, लेकिन ट्रिपल इक्वल टू नहीं यहाँ पे लिखा गया है कि इसको अगर सही, ठीक, तो ये ट्रू कर दे रहा है। समझ में आ रहा है? नल बराबर है लेकिन उसकी डेफिनेशन अलग है, एक अनडिफाइंड है, एक पहले से ऑब्जेक्ट में डिफाइंड है। ये जब काम करेंगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा जब उसको यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स यूज होते हैं, जैसे टाइप ऑफ ऑपरेटर कैन बी रिटन प्रिमिटिव डेटा टाइप, जैसे स्ट्रिंग, नंबर, ये पहले से यूज होता आ रहा है। बुलियन, अनडिफाइंड, ये सब क्या है, टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप जो पहले से सी में है, उसी को हमने कॉपी कर आगे बढ़ा लिया है। आगे देखिए, ठीक है, यहाँ पे एक एक्सरसाइज दे रहा है कि भाई वेरिएबल लेंथ ऑफ 16 क्या है, एक नंबर है, ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। फर्स्ट नेम क्या है, स्ट्रिंग है, लास्ट नेम क्या है, स्ट्रिंग है। तो आपने इसको डिफाइन करने की कोशिश की। जब ये वेरिएबल के सामने ये जब आपने मिडिल ब्रैकेट लगा दिया तो मिडिल ब्रैकेट का मतलब क्या है, कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिए तो ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सबमिट करिए आंसर को। चलिए देखते हैं। करेक्ट, ठीक है, आगे बढ़े। तो समझिए हम लोग आगे, तो ये पूरा डेटा टाइप था, समझे आप? हाँ, थोड़ा सा आप इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो ये अब आपको समझ में आ रहा है ना? जॉन, जैसे यहाँ पे भी एग्जांपल लिया गया है कि इन्वर्टेड कॉमा में है तो इसका मतलब क्या है, ये जॉन है। टाइप ऑफ 3.14 क्या है, ये नंबर होगा। ट्रू अगर दिखा रहा है, ट्रू और ट्रू दिखा रहा है तो इसका मतलब क्या है, बुलियन है। फॉल्स बुलियन है। टाइप ऑफ एक्स अनडिफाइंड है, अभी ना यहाँ पे अनडिफाइंड है, तो नल नहीं है, ये एम्प्टी नहीं है। एम्प्टी क्या है कि ये अनडिफाइंड है। नल होता तो
ये प्रिमिटिव डेटा टाइप जो हमारे पास अवेलेबल है वो ये है। तो ये यहाँ पे आपका जो जावास्क्रिप्ट है उसका डेटा टाइप और कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड हो जाता है खत्म।